Good afternoon, students. Today we are going to start the next topic of module 2, unit 2, which is neural network. Now, today's topic is pattern recognition and data classification. Now, pattern recognition means what? We are able to classify. We means human brain is able to classify. Now, the definition is given here, or some description is given here. I have underlined all the important sentences. This is the screenshot from the book itself, so you can refer this as your notes. Okay. Now, one of the distinguishing abilities of the human intelligence is ability to recognize the patterns effortlessly and efficiently and take decisions based on the results of that recognition process. Recognition involves the ability to classify the data into known categories. We can recognize because we can classify. इसका मतलब क्या है कि ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन इंटेलिजेंस इजीली क्लासिफिकेशन कर सकता है. किसके बेस पे? बेस्ड ऑन द नोन कैटेगरीज. ठीक है, हम किससे क्लासिफाई करते हैं? वी आर एबल टू क्लासिफाई द डेटा. फॉर एग्जाम्पल, some things are given to you and I am giving you the task ki separate the things which are in square shape and which are in circle shape. So what we have in our mind? We have the shape, how thing should be, and which thing we consider as a circle, which thing we consider as a square. तो उसका एक प्रॉपर्टी हमारे दिमाग में फिक्स है. So we can use that property and we are easily classify the given things. Okay, same thing is given here. But they gave one example from the ability of a parent to recognize the cry of a child to our being able to identify the individual from a silhouette. Means background. ये जो word है silhouette is the meaning of that word is background. इसका मतलब क्या है? Parents can recognize whether their child is crying or not. No one else are able to easily recognize this thing, but parents can, because parents know the background of their child. Okay, next is consider an application that is more familiar to us. मीन्स व्हाट? पैटर्न रिकॉग्निशन. ठीक है, तो पैटर्न रिकॉग्निशन में उन्होंने और एक अच्छा सा एप्लीकेशन दिया हुआ है, वेदर फोरकास्टिंग. ठीक है, assume that we have amassed a huge database of samples or patterns derived from reliable measurements of various weather related parameters called features. तो हमारे पास क्या है? We have एक huge database. What we have? We have huge database of samples और पैटर्न्स. ठीक है, वो सैंपल्स और पैटर्न्स किससे रिलायबल है? किससे बने हुए हैं? डिराइव्ड फ्रॉम द रिलायबल मेजरमेंट ऑफ वेरियस वेदर रिलेटेड पैरामीटर्स. और ये जो वेदर रिलेटेड पैरामीटर्स है उन्हें आप क्या कहोगे? आप उसे कहोगे फीचर्स. ठीक है, तो पैटर्न इज सिंपली अ वेक्टर ऑफ फीचर मेजरमेंट्स. तो अभी इसके ऊपर से हमने डेफिनेशन किसका बनाया? पैटर्न का बनाया. तो पैटर्न क्या है? पैटर्न इज सिंपली अ vector of feature measurements. For the present discussion, we assume that the available patterns are tagged and can be stored into two categories. ठीक है, अभी हमने क्या किया? जो भी पैटर्न हमारे पास है, जो भी फीचर्स हमारे पास है, ठीक है, उसको हमने क्या किया है? दो कैटेगरीज में सॉर्ट आउट करके रख दिया. वन करस्पॉन्डिंग टू पैटर्न दैट इंडिकेट द रेन एंड अदर करस्पॉन्डिंग टू द सैंपल्स दैट डू नॉट. तो अभी ये दो कैटेगरीज कौन सी है? एक कैटेगरी है जो रेन को इंडिकेट करती है, रेनिंग को इंडिकेट करती है, और दूसरी कैटेगरी ऐसी है जो रेनिंग को इंडिकेट नहीं करती. These categories are called as pattern class. तो अब ये फीचर्स, we divide these features into two categories. ठीक है, एक रेनी और दूसरा सनी. तो ये रेनी और सनी क्या बन गए आपके लिए? रेनी और सनी आपके लिए बन गए pattern classes. A pattern class is a set of patterns that originate from the same source or real world process or probability distribution and which share the
सिमिलर प्रॉपर्टीज। ठीक है, अभी ये पैटर्न क्लास क्या है? पैटर्न क्लास इज अ सेट ऑफ पैटर्न्स। ठीक है, पैटर्न क्लास क्या है? इज अ सेट ऑफ पैटर्न्स। वो कहाँ से, सेट ऑफ पैटर्न्स कहाँ से आए हैं अपने पास? दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम सोर्स और रियल वर्ल्ड प्रोसेस और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड विच शेयर द सिमिलर प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इससे आपका ये जो पैटर्न क्लास है वो आपके बने हुए हैं। नाउ सी द डायग्राम। अभी हमने रेनी और सनी, इसके लिए हमने क्या क्या फीचर्स कंसिडर किए? हमने कंसिडर किया व्हाट इज द टेम्परेचर, नेक्स्ट इज विंड वेलोसिटी, नेक्स्ट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, नेक्स्ट इज क्लाउड कवर। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर काले बादल घने छाए हुए हैं तो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं आज बारिश आ सकती है शायद से। ठीक है, तो टेम्परेचर बहुत कम हो गया है और ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, तो हम इजीली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि दो वी आर नॉट अ वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम बट वी कैन इजीली फोरकास्ट, हाँ आज पाऊस पडेल बहुतेक। ठीक है, सो दीज आर द फीचर्स। ठीक है, दीज आर द फीचर्स। विच फीचर्स आर दिस? टेम्परेचर, विंड वेलोसिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड क्लाउड कवर। और ये पैटर्न ऊपर, ये पैटर्न रिकॉग्निशन मशीन के इनपुट जाएगा और उसके ऊपर से आप फाइंड आउट करोगे ये रेन होगी या सनी डे ही रहेगा। ठीक है, तो रेन और सनी ये क्या हो गए आपके लिए? दिस बिकम्स योर पैटर्न क्लासेस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज suppose we want to design a pattern classifier that can predict whether or not it would rain on a particular day based on a certain feature measurement taken over the previous 24 hours। अभी हमें करना क्या है? एक पैटर्न क्लासिफायर बनाना है। वो हमें क्या प्रेडिक्ट करके देगा कि नेक्स्ट 24 आवर्स में बारिश आएगी या नहीं आएगी। द डिजाइन ऑफ सच अ सिस्टम इन्वॉल्व्स द डिमार्केशन ऑफ अ बाउंड्री दैट सेपरेट्स द टू क्लासेस इन क्वेश्चन, रेन एंड सनी। तो उसके लिए हमारे पास क्या चाहिए? डिमार्केशन ऑफ अ बाउंड्री हमें करते आना चाहिए। ये डिमार्केशन ऑफ बाउंड्री क्या करेगा? दिस डिमार्केशन ऑफ बाउंड्री डिवाइड्स द features into two classes। ठीक है, रेन एंड सनी। दिस इज portrayed in the next figure। Once such a class separating boundary or decision boundary is demarcated, prediction merely involves computing which side of the boundary a feature vector lies। एक बार अभी आपने ये क्लास सेपरेटिंग बाउंड्रीज बना ली और डिसीजन बाउंड्री बना ली, तो प्रेडिक्शन किसके ऊपर रहता है? प्रेडिक्शन में क्या इन्वॉल्व रहता है? कंप्यूटिंग, आपको कंप्यूट करना है कि विच साइड ऑफ द बाउंड्री अ फीचर वेक्टर लाइज। अ डिसीजन बाउंड्री कुड बी एज सिंपल एज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अभी ये डिसीजन बाउंड्री मतलब क्या है? डिसीजन बाउंड्री एक सिंपल स्ट्रेट लाइन रहेगा या तो फिर कॉम्प्लिकेटेड पीस वाइज लीनियर और नॉन लीनियर फंक्शनल फॉर्म रहेगा। बट वी आर कंसिडरिंग हियर कि दिस डिसीजन बाउंड्री इज अ सिंपल और सिंगल स्ट्रेट लाइन। ओके, नाउ सी दिस डायग्राम हियर। ओके, नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आपको ये क्लास बाउंड्री दिखाई दे रही है। तो ये जो ट्रायंगल्स है, दिस ट्रायंगल्स रिप्रेजेंट द रेन सेक्शन और रेन क्लास, एंड ये जो हेक्सागन, हाँ हेक्सागन्स है, दिस डिफाइंस द सनी डे। ओके, और इन दोनों फीचर्स को ये जो लाइन अलग करके दिखा रही है उसे आप क्या कहोगे? क्लास सेपरेटिंग बाउंड्री और डिसीजन बाउंड्री। ओके, okay, so this diagram 4.2 shows a new measurement is classified based on which decision region it falls into। okay, तो ये डायग्राम जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। okay, now yeah, this is all about the pattern recognition and data classification. This is the basic thing. In exam they are not going to ask question on this, but this is included and this is important. What is important in this topic? Important is what is feature, okay, what is pattern, how to define pattern class, okay, and what is
that class boundary. Okay, what is that class boundary? These four definitions are important, or decision boundary. Okay, class boundary or decision boundary. These four definitions are important. You have to go through about these four definitions. These four definitions are included in the underline sentences given in this document. Okay, I am coming with the next video tomorrow, and in that video we are going to cover the what is convex sets, convex hulls, and linear separability. Okay, thank you.